I'm going to talk about cooperative learning. Cooperative learning, as is clear from the very name also, it is for cooperation. It is for helping each other. When you work in group, when you group in pairs, that is related to cooperative learning. और इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी कि ये थ्योरी पे बेस करती है. वाइगोत्स्की की थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन पे ये बेस करती है. और वो क्या थ्योरी थी? जस्ट इन एक लाइन, जस्ट इन वन सेंटेंस, दैट students and children learn much more in groups as compared to the learning they make इंडिविजुअली. ये उसकी थ्योरी है. इस पे बेस करते हुए 1980s की ये डेवलपमेंट्स हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग, कम्युनिटी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग. लैंग्वेज में डेविड न्यूनन वगैरह जो हैं वो इसके फॉलोअर्स हैं इनके ज़्यादा. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. और इसको फॉलो करते हुए ये जो मेथड है ये वो इसमें है. और इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन एक और भी है कि इन कोऑपरेटिव लर्निंग each member is responsible not only for his or her learning but also for the learning of the other group members also. एक और term जो हम अक्सर यूज करते हैं, group dynamics, how do you work in a group, तो वो भी इसी से related है. When you work in small groups and when you learn as a larger group, when you work in pair, this is all of it is dealt under the umbrella of cooperative learning. You can look at the classroom also that they are having discussions and they are working in collaboration. अच्छा जी, हमने कहाँ यूज़ की हुई है, पीछे हम करके आए हैं. हम स्पीकिंग की जब बात कर रहे थे ना, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़, वहाँ हमने ये आपने स्लाइड देखी थी कि स्मॉल ग्रुप्स और टीम बेस्ड ओरल वर्क. व्हेन यू सेट अप certain, you make a certain groups, you divide your class into smaller groups in pairs and they sit together, they have discussions, they communicate with each other. आप क्या कर रहे हैं? आप collaborative learning या cooperative learning आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. इस वाली स्लाइड को भी देखें, ये आपने देखी थी. अगेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हम पीछे देख के आए हुए हैं, जिसमें हमने कहा था कि स्टूडेंट्स विल डिस्कस द टॉपिक, देन द टीचर और लीडर ऑफ ग्रुप टास्क, ग्रुप आस्क द क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस आर कैरीड आउट, मीनिंग द होल क्लास बिकम्स अ ग्रुप. Teacher is also a part of that. Small groups, larger groups, and they have discussions. Again, a sample of you see collaborative learning, an example of cooperative learning. ये देखें, इस वाली स्लाइड को हमने देखा था जब हम स्ट्रेटजीज को सम अप कर रहे थे ना रीडिंग के लिए, तो वहाँ हमने स्लाइड को देखा था. इसमें हमने क्या कहा था कि टीचर should introduce this strategy of 3 to 1 after reading comprehension. He should be knowing, he should try to ask what are the 3 things they have discovered, what are the 2 things they found interesting, and what is the one question they still don't understand. So 3 to 1 is the activity. Now you just try to visualize the classroom where the teacher is trying to conduct this activity. वहाँ क्या हो रहा है? अब देखिए ना, टीचर is acting like a group leader और पूरी क्लास आपका एक ग्रुप है. तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जा रहे हैं ना, कोऑपरेटिव लर्निंग पे जा रहे हैं ना. फिर अभी हमने ये राइटिंग एक्टिविटीज़ में भी ये स्लाइड हमने देखी हुई है, जिसमें हमने कहा था रोल प्ले कराएं. Teachers, students will be acting and students will be given some role in pairs or in groups and there will be a role play. Again group की बात है और एक again pair की बात है. तो ये किस में आप जा रहे हैं? आप collaborative learning में जा रहे हैं, आप cooperative learning में जा रहे हैं. ठीक है ना? अच्छा जी, यस, इसको आप देखें. जब हमने कहा था राइटिंग एक्टिविटी की बात करते हुए कि स्टूडेंट्स will be talking to each other and they will be discussing some incident, they will be discussing certain people and they will be talking to each other, they will be picking up the words, they will be listening to each other, they will be writing together. सारा काम किस में हो रहा है? पेयर्स में हो रहा है ना, ग्रुप्स में हो रहा है ना. तो आप कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जा रहे हैं. तो एक चीज़ आपको मैं और भी यहाँ मेंशन कर दूँ, अगर आप एक टाइप का मेथड पे जा रहे हैं उस वक़्त, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बाउंड्री बड़ी सारी बन गई है और दूसरे मेथड का बीच में कोई दखल नहीं है. नो, समटाइम्स आप देखें यू आर अप्लाइंग 2 or 3 मेथड्स टुगेदर. फॉर इंस्टेंस यही स्लाइड को आप देख लीजिए. व्हाट आर दे डूइंग?
they are going for the direct method. They are going for the communicative method also because they are having communication, and they are going for the cooperative learning also. ठीक है, तो इस तरह की भी सिचुएशन और सिनेरियो क्लासरूम में हो सकता है. मतलब कुछ ऐसा कोई अजीब बात नहीं हो गई कि इसमें आप ये कहें कि अच्छा ये है तो फिर वो कहाँ गया, ये स्लाइड तो हमने इसमें भी देखी है, इसमें भी. तो 5 दफ़ा वो सारे मेथड्स 2-3 इकट्ठे भी आप यूज हो रहे हैं, वो अप्रोच भी आ रही है, वो अप्रोच भी आ रही है, वो अप्रोच भी आ रही है. लैंग्वेज एक लिविंग फिनोमिना है और आपके ह्यूमन बींग्स है ही लिविंग है, जाहिर है, तो आप उनको कन्फाइन नहीं कर सकते, आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन माइंड को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. एक और बात भी मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि टाइम का एक लिमिट होता है, उसमें कन्फाइन करना होता है खुद को, तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने उठाई हैं, वरना जितनी भी मॉड्यूल्स पे हमने बात की, सब टॉपिक्स पे बात की, अब जितनी भी स्लाइड को आप किसी को भी उठा के देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि ओके दिस मेथड इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर. अच्छा सिर्फ ये मेथड नहीं है, वो भी आ रहा है, थोड़ी सी टच उसकी भी आ रही है, सो आप खुद भी उसको बहुत सारा एनालाइज कर सकते हैं. व्हेन यू आर standing in front of your students in your classroom, तो आप ये सारे methods आप अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे. ये आपकी चॉइस है, किस टेक्निक पे मुझे जाना है. दिस इज माई टारगेट, मुझे वो कैसे अचीव करना है. मुझे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट भी हमेशा होता है, तो मुझे ये टारगेट अचीव करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, फॉर माई सेल्फ. उसको मैंने बेहतर से बेहतर कैसा करना है, विच टेक्निक आई शुड अप्लाई, विच मैथड आई शुड यूज, दिस इज योर चॉइस. और उसका आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आई हैव टू डिलीवर इन द बेस्ट वे. दैट इज योर टारगेट, दैट इज योर मैसेज ऑल्सो.